Hello students. So now we are going to start our new topic in this chapter, that is control and coordination में हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की. It is very much important topic and it is very much interesting topic. Yes, it is related to us, तो हमको इसमें और मजा आएगा पढ़ने में. Yes, but it contains lots of matter, नए words आपके पास आएंगे, so you have to be more concentrate regarding these topics. Yes, so in this topic, the human nervous system. Yes, as the nervous system, as we seen कि अगर हम लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ अगर हम आते हैं, सो देर इज ए इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द देर इज इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जो भी ऑर्गन्स है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. यस, तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, सो देर इज ए क्या होते जाएगा, उनके जो स्ट्रक्चर है इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड होते जाएंगे. यस, सो लाइकवाइज द ह्यूमन ब्रेन इज वेल डेवलप्ड एंड वेरी मच कॉम्प्लेक्स. जो ऑर्गन है वो हमें देखने मिलेगा. यस, नर्वस सिस्टम में हमने बात की, वी हैव सीन कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्व सेल्स, साइनेप्सिस की हमने बात की. यस, नाउ वी आर टोटली कॉन्सेंट्रेट. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप के नर्वस सिस्टम है उनके बारे में हम बात करेंगे. उनके ब्रेन के पूरे एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे. सो इट इज़ very much good and interesting topic. Yes, so first, what is the central nervous system? It is the well developed and complex part of our body. Yes, so normally the central nervous system is divided into three types, as it is mentioned. We are taking some introductory part of this chapter. From this introductory part अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आपके बुक में पीछे जो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, दैट फ्लो चार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आई थिंक आपको ये पूरा फ्लो चार्ट आज अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि जब हम इनके डिटेल में जाए तो आपको ये इजीली समझ में आ जाए. यस, सो अगर हम नॉर्मली अगर बात करते हैं, सो अवर nervous system is divided into three types, that is the central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Yes, so peripheral nervous system, central nervous system and autonomic nervous system. In the central nervous system, it has brain and spinal cord. Yes, अगर हम central nervous system में बात करेंगे, तो we have to concentrate more of our जो हमको हमारा सारा concentration देना है, it is more on the brain and spinal cord. Yes, इसकी डिटेल हमको अच्छे से पढ़नी है. Yes, next there is a peripheral nervous system, that is it is further divided into the cranial nerves and spinal nerves. Yes, and after that there is a autonomic nervous system. Autonomic nervous system is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Yes, so this is how ये जो flow chart है, ये flow chart हमें दिमाग में अपने रखना है, and according to this flow chart we are going to see, ये पूरा हम आगे पढ़ने वाले हैं. यस, हम यहाँ पे ब्रेन का डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. देर आर जब ब्रेन की हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ आप देखिए ब्रेन का भी एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है. यस, सो वी हैव टू सी व्हाट ब्रेन का स्टडी करना है. देन स्पाइनल कॉर्ड्स, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, then sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. In this we have to study in details brain के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी है. Yes, this is how we, ये पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक इट इज़ दिस मच टॉपिक वी हैव टू स्टडी इन दिस. ये पूरे जो इसके सब टॉपिक्स है इसको हमें देखना है. यस, सो नाउ अगर हम मोटा मोटा अगर बात करते हैं, या फिर हम बुलेट पॉइंट्स अगर देखते हैं, सो वी हैव we have the three parts of the nervous system, that is the central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Yes, अब हम ब्रेन की बात करते हैं, जहाँ पे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को देखा. सो ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. सेरिब्रम, diencephalon, this is the part of the forebrain. Then in midbrain we have optic lobes and optic chiasma. Yes, then in hindbrain we have cerebellum, pons, varoli and medulla oblongata. So these are the
सब टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी। यस, सो आज अगर हम देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस, सो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? अब अगर हम बात करते हैं, सो अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली कंटेन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, brain and the spinal cord. Yes, this, if we consider the central nervous system, so it contains brain and the spinal cord. This is the brain. Yes, and this is the spinal cord. Yes, so this part जो हमारे सर से जो नीचे तक का पार्ट जा रहा है, that is the central nervous system. So what is the basic, आप बोल सकते हो क्या रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? सो अवर बेसिक रोल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और यू कैन से टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम। यस, जितने भी सेंसरी सिस्टम हैं, लाइक स्किन हो गया, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, उनसे क्या करना है? They have to collect the information. Yes, so what is the role of this central nervous system? If it is the central nervous system, so what is the role of the central nervous system? It has to take all the information from the sensory organ. Yes, it has to take all the information from the sensory organ, and from this it has to compare or contract, और हम कोई भी चीज़ को वहाँ पे जाके कलेक्ट करना, उसके बारे में सोचना, एंड आफ्टर दैट इट गिव रिस्पॉन्स बाय दिस मोटर रिसेप्टर्स. So this is the central nervous system, और ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, that is the peripheral nervous system. So main part is the central nervous system. It contains brains and spinal cord, और उसको इंफॉर्मेशन लेके आना और इंफॉर्मेशन वापस लेके जाना, इट इज़ द वर्क ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यस, मतलब नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्लास में हैं, मैं अगर क्लास में हूँ, इफ़ आई एम teaching you in a class, so what happened? You are all old students. Yes, और वो मैं कैसे डिटेक्ट करती हूँ? जैसे मैंने सबसे पहले, हम क्लास में आएंगे, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सो आई हैव कलेक्ट माई इंफॉर्मेशन बाय माई आई. यस, मैं आँखों से देख के आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स. इफ़ आई फाउंड कि somebody is, कोई अलग दिख रहा है मुझे, यस, somebody is seeing strange, यस, कोई अलग दिख रहा है, सो आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, क्या ये वो पुराना बच्चा है, कोई पुराना बच्चा है या कोई नया है? यस, सो वॉट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फ्रॉम द आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एंड मैं उसके बारे में क्या कर रही हूँ? सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन, एंड अबाउट दैट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं. इफ़ आई फाउंड, अरे नहीं, ये तो कहीं पुराना बच्चा था जो बहुत दिनों से आया नहीं था, अब वो आया है. सो इन द रिस्पॉन्स आई एम गिविंग स्माइल ऑन माई फेस. यस, सो दैट इज द क्या मिल रहा है मुझे? रिस्पॉन्स मिल रहा है. दैट इज द मोटर रिस्पॉन्स, या आप बोल सकते हैं उसका हमें रिस्पॉन्स मिला. मीन्स सेंसरी ऑर्गन्स ने जो इंफॉर्मेशन था वो कलेक्ट किया. इट गोज इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में उसको हमने स्टडी की, और उसके बाद उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया? रिस्पॉन्स किया. दैट रिस्पॉन्स बाय द मोटर नर्व्स और द मोटर रिसेप्टर. सो हियर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका मेन पार्ट क्या हुआ? इट इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी सिस्टम, एंड टू कंपेयर with the present information with the past information. Yes, and उसके बाद उस information के against में वो response देगा. that is the part of the central nervous system. So सारा कुछ कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसको सेंसरी ऑर्गन्स जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो मोटर ऑर्गन ये इंफॉर्मेशन वापस लेके जा रहे हैं. सो दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
that is the peripheral nervous system. So it is the difference between the central nervous system. अगर हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, इट ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद यहाँ से जितने भी आपको नर्व्स दिखाई देंगे निकलते हुए आजू बाजू, दैट आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट आर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, अब अगर हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे हम ब्रेन की बात करते हैं, सो इट इज़ वेरी मच, अब देखते हैं ब्रेन, इट इज़ कवर्ड बाय, ये बहुत ही आप देखेंगे कि इट इज ये एक तरह से पैक किया हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि इट इज वेरी मच एनक्लोज्ड। यस, इट इज वेरी मच एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड। यस, सो हियर the brain is enclosed within the brain box. Yes, the brain is enclosed within the brain box, and that it is called as cranium. It is called as cranium. Yes, whereas the spinal cord occupies the vertebral canals of the vertebral column. Yes, यहाँ पे जो spinal है, it is ये किससे ऑक्यूपाइड है, विद द वर्टिबल कॉलम्स। जो स्पाइन है, इट इज स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द वर्टिबल कॉलम्स। इसको कौन ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वर्टिबल कॉलम्स। यस, अब इनके अंदर जो है देर इज अ वेरी मच प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजिस। इसके अंदर क्या है, मेनिंजिस है। ओके, एंड दिस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और यही मेनिंजिस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। अब ये जो लेयर्स है, देयर आर 3 लेयर्स विच आर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द 3 membrane that are, first is the pie matter, that is first is the pie, first is the pie matter. Yes, ये वेरी मच जो ये पाई मैटर रहेगा, ये टोटली क्या रहेगा, इट इज़ वेरी मच डेलिकेट एंड वस्कुलर मेम्ब्रेन, इट इज़ क्लोजली कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें कि इससे सबसे जो क्लोज जो लेयर रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द पाई मैटर, दैट इज़ द पाई मैटर। ओके, मैं पेंसिल से बना रही हूँ, दिस इज द पाई which covered the central nervous system and the spinal cord. Yes, pie means soft, pie means soft, and matter means mother. Like mother, it is softly handle this brain and spinal cord. So it is very much inner side. ये कैसा रहेगा, inner side रहेगा, that is the pie matter. About इसके बाद the another layer, it is called as arachnoid matter, it is arachnoid matter। उसके ऊपर कौन सी लेयर रहेगी, that is the arachnoid matter। it is non-vascular, it is non-vascular layer, and it is the arachnoid की अगर हम बात करें, arachnoid matter, arachnoid means spider, like a spider। yes, तो यहाँ पे it is like a spider, उसकी जो एक लेयर है यहाँ पे आपको पूरा एक जाल की तरह दिखेगा। it is non-vascular layer of connective tissue having web-like appearance, एक वेब, एक जाल की तरह आपको दिखाई दे रहा। yes, that is the second layer is the arachnoid matter, like a spider like or web like appearance। yes, then इसके ऊपर there is a third layer name as dura matter, name as dura matter, name as dura matter। yes, that is the outermost। अब ये सबसे ऊपर है तो ऑब्वियस है, इसको ड्यूरा मीन्स टफ,
ड्यूरा मीन्स टफ। सो अब ये सबसे ऊपर है तो ऑब्वियस है कि इसको कैसा रहना पड़ेगा, इट इज शुड बी टफ, इट शुड बी नॉन वस्कुलर, ये थिक रहेगा। देन इट इज द अटैचमेंट, ये जो है आप बोल सकते हो कि ये एरेकनॉइड और जो पाए उसको जोड़े हुए हैं, यस, उसको एक आप बोल सकते हो ब्रेन को एक उसने टफनेस प्रोवाइड की है, तो जिसके कारण इट विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस, जितने भी शॉक होते हैं या फिर जितने भी अगर बाहर से कुछ चीज़ें लग जाए तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, इट इज़ द ड्यूरा मैटर। यस, सो अगर हम बात करें तो दिस central nervous system, that it is the brain and spinal cord, it is divided or it is protected by three layers or three आप बोल सकते हैं yes, three layers, that is or the membrane. So first is the pi matter, that is the soft matter which is non-vascular. Yes, that sorry, this is the vascular, जो पाए है वो कैसा है, वस्कुलर है। उसके बाद यू हैव द एरेकेनॉइड मैटर, दैट इज द स्पाइडर लाइक, जिसमें नॉन वस्कुलर और वेब लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो पूरी तरह से जाल की तरह पूरा फैला हुआ है। यस, एंड उसके ऊपर की कवरिंग, इट इज द ड्यूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट टफ कवरिंग। Yes, it is also non-vascular. Yes, so this is how the central nervous system is protected. Now, in this central nervous system, there is a fluid that is called as the that is the cerebrospinal fluid. That is the cerebrospinal fluid. This is the fluid which is secreted by the pi matter, and the choroid plexus and ependymal cells lining ventricle to the brain. So these are the some parts of the brain from where the cerebrospinal fluid is secreted, and this fluid has the property that it protect the brain and the spinal cord from the mechanical injuries. ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड पूरे ब्रेन में हमारा फैला हुआ है, and this fluid will protect our brain from the mechanical injury. कुछ भी बाहर से इंजरी रहती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए it is the cerebrospinal fluid which is very much important. It also maintain the constant pressure inside the cranium. ये जो cranium है जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है ब्रेन को, उसमें प्रॉपर एक प्रेशर मेंटेन करता है, it is the cerebrospinal fluid. And it also maintain or it also exchange the nutrients and waste between the blood and brain tissues. अब ये जो cerebrospinal fluid जो all over the brain and spinal में फैला हुआ है, this will exchange the nutrients. Yes, this will exchange like blood, it will exchange the nutrients and waste between the blood and brain tissues. Yes, and it help to supply oxygen to the brain. So अगर हम बात करते हैं जो हमारा spinal या central nervous system है, it is protected by these three layers, and with the help of these three other substance, that is the cerebrospinal fluid की अगर हम बात करते हैं, so this is the fluid which is secreted by the pi matter and other parts of the brain, that is the choroids, plexus and ependymal cells and lining of the ventricles of the brains. These are the some parts which are in interior of the brain. So ये हम सिर्फ याद करेंगे. Yes, so ये जो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस स्पाइनल cerebrospinal fluid जो है, it will secreted, and this cerebrospinal fluid, it will help to protect the brain and the spinal cord from the mechanical injuries, and it also maintain the constant pressure of the brain. Yes, inside the cranium. It help in exchange of nutrients and waste between the blood and brain tissue. It also supplies the oxygen to the brain. Yes, so these are the some function of this cerebrospinal fluid. It is slightly alkaline fluid with the specific gravity of 1.005 and
uh, total of 100 to 120 cc of cerebrospinal fluid is present in and around the central nervous system. This all the things are mentioned in your book. Yes, so these are the characteristics of this cerebrospinal fluid. So here we have seen कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसमें हमने देखा कि these are the three layers which are protecting the brain, and this cerebrospinal fluid which is also protecting the brain. Yes, so this is the part of the central nervous system. In the next class we are going to see in detail the human brain. Yes, उससे पहले आपको आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको पूरे ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में बनाने हैं. यस, एंड यू हैव टू लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ डायग्राम एंड रिकॉल देयर फंक्शन. ये जो डायग्राम है इसको आपको आपकी कॉपी में बराबर से इसको बना के रखना है ताकि जब हम ह्यूमन ब्रेन को पढ़ेंगे तो ये आपको आइडिया रहे. वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ पता रहना चाहिए. तो यू हैव टू लेबल दिस डायग्राम. Yes, and in the homework you have to draw this flow chart and send to me. Yes, so this is all about today. In the next class we are going to see about the human brain. Yes, hope you like the video. Okay, so study well. Bye bye.